Assalamu alaikum, everyone, and welcome to today's episode of ProMinds Hub. I'm your host, Sheila Makhani, Principal Consultant at Optimedia and Co-founder ProMinds Hub. आज के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे द आर्ट एंड साइंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ CTO. We are honored to have Syed Yusuf with us as our guest, a visionary leader and seasoned professional whose career is not more than a shortcoming of extraordinary things. With roles spanning architect, director, and project manager, he has been at the forefront of cutting edge technologies, crafting innovative solutions that have defined business applications. His collaboration with Fortune 500 companies and his ability to manage multiple teams and projects simultaneously speak volume about his leadership expertise and strategic acumen. Beyond his corporate achievement, one thing I would like to share is Syed has shared his vast knowledge through teaching at renowned universities and organizations, mentoring the next generation of tech professionals. I would say कि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि generations of software engineers को इन्होंने पढ़ाया है पाकिस्तान के अंदर और हम में से सब और बहुत से लोग इनसे पढ़कर गुजरे हैं. In today's episode, we will uncover his insights on what it takes to lead engineering team to success, balancing technical excellence with team dynamics, fostering innovation, and navigating challenges in high-stake environment. So let's get ready for an enlightening conversation packed with actionable advice and inspiring stories. Let's begin. Assalamu alaikum, Yusuf. Walaikum assalam, Sheila. I hope today's session is going to have a lot of experiences for the people who learned from you through working with you. And I think through your teachings in the universities. I think I'm also one of them who have learned from you as a student. And it's an honor for me to have this podcast with you. Um, so let's start with the very first question because you have spent a good lifetime span of your life as a CTO, as an engineering head, actually. So, what qualities you prioritized when you assemble an engineering team, and how do you identify these qualities during hiring? The hiring process is the usual one. I mean, it's no different than any other. We tend to shortlist. We tend to create some kind of job description and try to match the resume with the job description, shortlist people, and then do the interview test and all that stuff before hiring. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि besides the usual thing, I have some kind of edge over hiring people just because I know many of my candidates beforehand because either they were my students or they were acquaintances from different places. So for me, it is very easy to hire someone because I know the caliber of someone before they are the candidate for the company. तो इनिशियली तो बिल्कुल नॉर्मली ही होता है लाइक मतलब कि जो मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि हाउ मच पोटेंशियल समवन हैज. So I only look for the potential because the other things are like knowledge about tools, knowledge about how to work in a particular organization and a particular team. I generally assume that these kind of quality every candidate already has that. ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा बहुत उसे ट्यून डाउन कर सकते हैं. But the most important thing is the potential to work, potential to progress. मैं कुछ इस तरह के लाइक क्वेश्चंस, इस तरह के सिनेरियोज इनके सामने ले आता हूँ कि जिसके अंदर मैं सिर्फ ये देख रहा होता हूँ कि वो किस तरह सोच रहे हैं, कितना अच्छा सोच रहे हैं और कितनी एफर्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. प्रॉब्लम इज
ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशंस या ड्यूरिंग द हायरिंग सेशंस जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आपको टेस्ट दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा के पूरा टेस्ट कंप्लीट करें। आपके सामने बहुत सारे सवालात होते हैं, सिनेरियोस दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो तमाम वो सवालात के सही जवाब दें और बिल्कुल परफेक्ट आपका इंटरव्यू हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये देखना है कि आप क्या एफर्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे सिर्फ यही देखना होता है, ठीक है। वंस आई सी दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, देर इज समथिंग इन 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 दिस कैंडिडेट, और मैं बाकी इसको ट्यून अप कर लूंगा। क्योंकि देखिए, उसके बाद फिर एक अलग सिलसिला शुरू हो जाता है कि व्हेन समवन इज हायर्ड, and then we have a separate way of grooming up an individual. Okay. So, Yusuf, I'm sure in your career lifespan, you have developed many new teams. I believe your people having new teams having new people in your team, right? और लेकिन बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि टीम में टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? और उनको सॉल्व करने में काफी टाइम स्पैन लग जाता है। So, आपके इस entire experience में have you experienced such teething problems or common challenges while developing some new teams and how you cope up with them? जी बिल्कुल। देखिए, ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो हर टीम में हमेशा होते हैं, ठीक है। आप फ्रॉम दी बॉटम अप एक कोई टीम स्टैब्लिश करें, या आप बंच ऑफ न्यू हायर्स अपनी टीम में इंक्लूड करें, तो ये तो हमेशा ही रहता है। देखें, जितनी जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, आप हमेशा याद रखें कि उन्हें कांस्टेंट ट्रेनिंग, कांस्टेंट मेंटोरिंग की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, इस तरह नहीं हो सकता है कि देखिए, ये अच्छी बात है कि समवन इज वेरी लर्नर्ड एंड दे आर पार्ट ऑफ योर टीम। तो बहुत अच्छी बात है, तो बोनस पॉइंट्स हो जाते हैं आपके पास। बल्कि आप उनको और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं टू ग्रूम अदर टीम मेंबर्स। लेकिन अगर कोई नहीं है इस कैलिबर का, सो दैट्स फाइन। मतलब हमें जिस चीज के ऊपर फोकस करना होता है वो यही है कि इट्स अ कांस्टेंट ट्रेनिंग, कांस्टेंट ग्रूमिंग, और कॉन्स्टेंटली आप उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं इस बेसिस पे कि दे आर एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ बेटर आउटपुट। वो आउटपुट जो कि आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर रहा होगा, इंक्लाइंड होगा। तो ये बेसिकली जरूरी है। देखें, दिस इज वेरी I would say कि it's very sad, but it's not a good way of simply saying कि I'm hiring a software engineer, I'm hiring a support engineer, I'm hiring a QA engineer, और आप जितने भी टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं वो उसी के अराउंड ले रहे होते हैं। और बल्कि इतने हाई एंड और टफ इंटरव्यूज और टेस्ट्स होते हैं कि आप ऐसा लगता है कि पता नहीं किस लेवल का कोई प्रोजेक्ट होगा। कोई लाइक 1,000 पीपल की कोई टीम होगी और उसमें आपने काम करना है, और कोई बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आपने कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। तो हम सारी चीजें मालूम कर लेते हैं। देखिए, वो अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने एक फ्रेश ग्रेजुएट को वो सारी के सारे सवाल पूछ लिए जो कि हो सकता है कि आप अपनी टीम में वो यूज भी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें इतना कैलिबर है, इतनी नॉलेज है, वो नॉलेज के बेसिस पे ही आप उसको हायर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी खैर बहुत सारी बहस हो सकती है, बट मेनली आप नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी, और ये एक्सपीरियंस टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर कोई आपको सिनेरियो दे देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस भी टेस्ट हो रहा है आपका, कि आपने इस इन पर्टिकुलर सिनेरियोस में किस तरीके से काम किया है। बट जब आप उसे हायर कर लेते हैं और अपनी टीम का एक पार्ट बना लेते हैं, तो देखें उसके अंदर होता कुछ इस तरह है कि जब
आपने वो टेस्ट तो ले लिया उसका बहुत हाई, लेकिन जब आपने उसको अपनी टीम में डाल दिया तो वो ये देखेगा कि हाँ ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। बहुत हाई एंड भी कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स अ चैलेंजिंग समटाइम्स, बट इट्स ओके। अच्छा, अब आपने वो जो उसका जो कैलिबर था, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्यूए इंजीनियरिंग या सपोर्ट इंजीनियरिंग या इसी से रिलेटेड कुछ और, तो वो तो आपने अच्छा खासा टेस्ट कर लिया उससे, ठीक है। लेकिन जब आप उसे लीड बना रहे हैं, लेकिन या आप उसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ लेके जा रहे हैं, या आप उसे कोई एक आर्किटेक्ट लेवल पोजीशन दे रहे हैं, या किसी भी किस्म का कोई एक लीड ही मैं कहूंगा कि एक पोजीशन दे रहे हैं, आपने क्या उसे ये बताया है कि हाउ टू लीड द टीम, हाउ टू एग्जीक्यूट सर्टन वर्क? अगर उसने कुछ चीजें सीख के वो आपके सामने एक आउटपुट दे देते हैं, तो आप कहते हैं कि वो ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, बिकॉज हमने तो उसको ये कहा भी नहीं था और ये इसने बहुत कुछ अच्छा कर लिया। ठीक है, वो तो कुछ उसने अपनी खुद से अचीवमेंट की थी। लेकिन अगर आप उससे वाकई चाहते हैं कि ये कुछ कर ले, तो आपने इंटरव्यू के दौरान तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और क्यूए इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसके सारे के सारे टेस्ट्स और क्वेश्चंस पूछ लिए थे। लेकिन अब आप उसे एक नई पोजीशन दे रहे हैं, क्या आपने उसके लिए उसे प्रिपेयर किया था, या आप समझते हैं कि ठीक है, टीम का पार्ट है तो वो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी को नेक्स्ट लेवल पे डालने के लिए उसे वो सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि आपने क्या कुछ करना है अब, और फिर उसे वो पोजीशन देनी होती है। ठीक है, इसी तरह से लोग लीड करते हैं, इसी तरीके से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, खुद से कोई नहीं आगे बढ़ता है। अगर खुद से कोई बढ़ जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसमें इतना पोटेंशियल है, कैलिबर है, दैट्स फाइन। बट अगर नहीं है, तो आप हमेशा देख रहे होते हैं कि एक लीड, एक अच्छा एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है, बहुत अच्छा उसकी उसे टेक्निकल नॉलेज तो है उसके पास, बट दे कैन नॉट मैनेज द समवन एल्सेस टास्क, you cannot manage someone else itself। ठीक है, एक टीम को ही मैनेज, लाइक पीपल मैनेजमेंट उसको नहीं पता। तो ये चीजें जो लैक करती हैं, वो जब तक आप उसे वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ओके, सो कई दफा हम ये कहते हैं कि जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम में आता है, ज्वाइनिंग को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब उससे कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो भी एक समटाइम्स कॉमनली कमेंट आता है कि या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऑन बोर्डिंग सही नहीं हुई। वी नो दैट कि एक एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, बट इंजीनियरिंग टीम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, चाहे वो न्यू हो या चाहे वो एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सो इन योर ओपिनियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंजीनियरिंग टीम में ऑन बोर्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, onboarding is like joining a particular team and leading or grooming up to a certain extent। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, लाइक आई सेड बिफोर, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि देखिए, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, कांस्टेंट ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग इज अ मस्ट थिंग। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये ऑनबोर्डिंग सही नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है? क्या आपने आपका इंटरव्यू प्रोसेस में कोई फ्लॉ था? आपने क्या इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे उससे, कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई सिनेरियो नहीं दिया उसे? देखिए, ये वो वाली सारी चीजें होती हैं कि जिसमें किसी में कुछ ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हमेशा कोई परफेक्ट इंडिविजुअल मिलेगा जो कि आपकी टीम का पार्ट बन सकता है। ठीक है, आप मैं दोबारा से अपना लाइक वही सेंटेंस रिपीट करना चाहूंगा कि ऑलवेज लुक फॉर अ पोटेंशियल, हाउ मच someone is, he or she is eager to to move forward। ठीक है, उसे एक प्रॉब्लम दी जाए, वो उसे कितना चैलेंजिंग लेके वो आगे बढ़ जाता है। हाँ देखें, आपने जो चीज नहीं देखनी है ना किसी भी टीम में, वो है लेड बैक एटीट्यूड। ठीक है, अगर लेड बैक एटीट्यूड, यानी कि ठीक है, काम दिया तो कर लेंगे वैसे, अगर फारिग है, कोई काम नहीं है तो ठीक है, आप कुछ भी कर लें, फिर तो आपका फारिग टाइम है, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
अच्छा ये जो लीड्स हैं उनके पास उन्हें भी पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है एक सर्टन जो टास्क है it will be completed within certain amount of time. And after that, if there is nothing from the usual task, तो आप उसे कोई भी एक लर्निंग, कोई भी ग्रूमिंग का कोई भी एक टास्क दे सकते हैं, कोई भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है क्या, एक लीड को भी प्रिपेयर होना होगा कि हमेशा उसके पास किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे के सारे टास्क अवेलेबल नहीं है। अगर वो नहीं है तो जब वो किसी ने अगर काम खत्म कर लिया, लेट्स सपोज समवन इज रिव्यूइंग द वर्क व्हाइल यू नो दिस इंडिविजुअल इज सिटिंग आइडल, तो आप उसके उसे कोई भी काम दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चैलेंजिंग कोई देखिए। और इट इट डिपेंड्स कि आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरीके से आप किस तरीके से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई आपका फ्यूचर में और क्या क्या काम हो सकता है। तो आप उसी लाइक कैलिबर की चीजें आप दे सकते हैं। आप माइंड गेम्स किसी को दे सकते हैं कि भाई आप वो कोई ऐसे माइंड गेम्स जो हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका जहन थोड़ा खुलेगा, आपको एक लॉजिकल थिंकिंग मिलेगी। ठीक है, आप एक और आजकल एक टर्म यूज हो रही है लाइक डिजाइन थिंकिंग और द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसमें बेसिकली यही है कि कोई कितना अच्छा सोचता है, कितना अच्छा किसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड सोच सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर ये दे दूं कि फॉर फ्रंट एंड डिजाइनर और यूआई डिजाइनर, यूआई यूएक्स, तो वो किस तरह सीखता है। अक्सर दफा तो उस इंडिविजुअल के लिए भी लर्निंग की कोई ग्राउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, सेपरेटली वो खुद ही कुछ कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, खुद ही कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो जो चीज़ें, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत कुछ है और दूसरे कोर्सेज भी हैं जो कि सिखा लेते हैं उसे। लेकिन वो एक सर्टन एक एक कोर्स का काम देखिए। एक जो कोर्सेज बनाए हुए होते हैं वो आपको एक सर्टन लेवल तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा आउटपुट चाहिए तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ उस कोर्स से वो सारे आपके आउटपुट्स कंप्लीट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बहुत ही छोटा सा काम करवाना है, तो ठीक है आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कुछ काम करवा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा हाई एंड काम करवाना है तो आप ये देखना चाहेंगे ना कि उसने ये तमाम कोर्सेज कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हर कोर्स का एक लेवल होता है और उसमें सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यूआई यूएक्स की बात करता हूँ, तो अगर कोर्सेज हैं तो उनमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, अब अगर उसके अंदर मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूं कि अच्छा ठीक है आपने यूआई यूएक्स का कोई एक बेसिक का कोर्स कर लिया है और अब आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये कुछ इतना अच्छा सोचे कि जिस तरह हमारा कस्टमर कह रहा है कि वो इस तरीके से कोई चीज डिजाइन हो, तो अब ये कैसे उसके अंदर आप इंड्यूस करना चाहेंगे इस इंडिविजुअल के अंदर कि वो उसी तरीके से सोचे जिस तरह कस्टमर सोच रहा है। इसका मतलब है कि उसे एक कांस्टेंट मेंटोरिंग ट्रेनिंग या उस टाइप की चीजें या चैलेंजेस देने होंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ कि आपने चैलेंजेस उसे दे दिए या आपने कोई हाई एंड काम उसे कोई या ट्रेनिंग आपने करवा दिया, उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी चेक करना चाहेंगे आप। ठीक है, जब तक आपने उसके काम को रिव्यू नहीं किया उसे पता ही नहीं चलेगा। इट्स जस्ट लाइक आपने एग्जाम ले लिया और उसके बाद रिजल्ट ही नहीं दिया आपने, और उसकी बेसिस पे आपने ठीक है आपको कुछ ना कुछ पता चल जाता है, कभी कभार आप जज कर लेते हैं कि ओके ही और शी डिड वेरी वेल। बट उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे उसे कैसे पता चलेगा कि उसने सही किया है। अगर उसे ही नहीं पता चलेगा तो आप नेक्स्ट टाइम उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करें इस लेवल का काम। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑनबोर्डिंग जो आपने सवाल पूछा था उसके अंदर यही है कि आपने एक एक पोटेंशियल कैंडिडेट को आपने इंक्लूड कर लिया अपनी टीम में, एंड देन कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, रिव्यूइंग द वर्क एंड ऑल दैट स्टफ ये जरूरी है। और उसके बाद ही आप वो हाई आउटपुट दे सकते हैं। That's great, Yusuf. So, my next question would be कि एक होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी
लाइफ में वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो उसे एक पैशन होता है, वो उसके पूरा कर रहा होता है। ठीक है ना? और वो उसके लिए जो है वो काम भी कर रहा होता है। बट आई वुड लाइक टू नो कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। मीन्स लिटरली हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब उनके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो मोस्टली जो लेस पार्टिसिपेशन मिलता है वो डेवलपर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, बिकॉज दे आर मोर फोकस टूवर्ड्स देयर वर्क एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड पर जो है वो ज्यादा फोकस नजर नहीं आता। सो इन योर ओपिनियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? Definitely, it has a very big role in the life of the software engineer. देखें, एक अच्छी कंपनी वही होती है कि जिस लाइक एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जहाँ लर्निंग या एक तरीके से एक छोटी सी एकेडमी बना दी जाए कि जिसके अंदर आप हमेशा एक कुछ कोर्सेज रखें उस एकेडमी में, और वो एक कांस्टेंट लर्निंग के साथ वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि देखें, अब अगर मैं ये कहूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कोई एक चैलेंजिंग टास्क देना चाह रहे हैं, तो आपको वो सिनेरियो सारे के सारे क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है? और बिल्कुल उसी तरीके से जो जो आपकी कंपनी के साथ, कंपनी की जो बिजनेस है उसके साथ अलाइंड हो। फॉर इंस्टेंस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, और अगर उसकी प्रोडक्ट लेट्स सपोज हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो हेल्थ केयर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लर्निंग के जो भी टास्क होंगे, लर्निंग के कोई भी कोर्सेज होंगे, वो सारे के सारे आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारा कुछ है। क्योंकि देखें, इवेंचुअली तो हर एक ने बिल्कुल उसी तरह सोचना है कि द वे एनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वुड थिंक कि how a particular patient, how a particular doctor, how a particular department in the healthcare organization, how they actually work. और वो बिजनेस साइड देखें, टेक्नोलॉजी साइड भी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिसके अंदर बैकएंड पे लेट्स सपोज जावा है या सी शार्प है फॉर इंस्टेंस, तो आप इसके अंदर एक कोर्सेज कुछ अच्छे रख सकते हैं, जैसे कि हाउ टू डू अ रीफैक्टरिंग। देखें, पॉइंट सारा ये है कि कभी भी कोई एक जो कैंडिडेट आप हायर करते हैं और आपकी टीम का पार्ट बन जाता है, वो हमें कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्क्रैच से काम हो, कि हमेशा कोई एक बिल्कुल ही एक नई चीज बनाए। हाँ, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट में कोई एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कोई स्वीट ऐड करना चाहते हैं। बट यूजली तो आप ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं कि जो कि एग्जिस्टिंग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, and then you want to add more to it. So this means someone has to learn and do some kind of a reverse engineering of an existing code, या existing program, या existing architecture. तो अब इस तरह के कोर्सेज कैसे बनाए जाएं कि अगर एग्जिस्टिंग कोई कोई चीज है, तो आप हाउ टू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व एंड जो भी एक ऐसा कोई भी ऐसा काम आप कर लें जो कि बिल्कुल ही आपको एक ब्रांड न्यू दे दिया गया है, और आपने उस ब्रांड न्यू काम को अपने एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर फिट इन करना है। ठीक है? तो ये वो वाली चीजें होती हैं कि जो कि नॉर्मली आपको एकेडमिया में नहीं सिखाई जाती है। ठीक है? तो अब ये कैसे आपको बताया जाए, क्योंकि एकेडमिया में तो हर चीज बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। आज हम एक नया असाइनमेंट करेंगे बिल्कुल ही स्क्रैच से, नया प्रोजेक्ट, नया असाइनमेंट, हमेशा यही चीज है। लाइक इंडस्ट्री में आके पता चलता है कि नॉट एवरीथिंग इज न्यू। आपको हम एक किसी का एग्जिस्टिंग कोड ही मिला हुआ होता है कि जिसको आपने मॉडिफाई करना होता है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि अब ये कैसे आप सिखाएं किसी को। सही है? इसलिए मैंने एक टर्म यूज की, रिफैक्टरिंग की, कि हाउ टू परफॉर्म रिफैक्टरिंग, कि किस तरीके से कुछ चीजें
इंक्लूड करें। इसी तरह अगर आपका कोई एक देखिए, हर प्रोडक्ट किसी न किसी बिजनेस के लिए बनी हुई होती है, तो आपने ये बताना जरूरी है कि हाउ दिस पर्टिकुलर बिजनेस एक्चुअली वर्क। तो तो उसकी वर्किंग या वो बिजनेस जिस तरीके से ग्रो करता है, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ लाइक अपने कोर्सेज रख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर देखिए ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि एक कोर्स को डेवलप करना। इसका मतलब है कि आपको एक और टीम लेनी पड़ेगी who are basically part of your you know organizational academy, और वहाँ आप वो ट्रेनिंग कोर्सेज डेवलप करें किस तरीके से अपने कोर्स, जो कि सेल्फ लर्निंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैं सेल्फ लर्निंग की बात करता हूँ। कभी कभार क्लासरूम ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है ना, जब आपको एक बल्क में और एक बहुत ही इंटरैक्टिव आपने कोई चीज़ समझानी है, तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग रखें। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो इन प्लेस भी हो सकती है। बट ज्यादातर जो लोग करना चाहते हैं वो सेल्फ लर्निंग है, जिसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसके अंदर आपने वीडियोस कुछ बनानी होती हैं, जिसके अंदर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, जिसमें बैकग्राउंड नरेशंस होती हैं, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, लोगों को किस तरीके से सिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशनल एकेडमी का पार्ट होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमारी टीम लाइक टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अब हम साथ में कुछ टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है ना, जिसको आप जनरली ऑर्गेनाइजेशनल एकेडमी आप कहते हैं, और वहाँ लोगों को के लिए कोर्सेज रखते हैं और वो फिर आप सीख रहे होते हैं। तो ये कांस्टेंट लर्निंग आपको हमेशा करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने बिजनेसेस को किस तरीके से उनके कोर्सेज डेवलप कर लें, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप किस तरीके से कोर्सेज डेवलप करें। दुनिया में नई चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, अब पुराना कोड एक हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अब कोई चीज़ पुरानी इतनी फौरी तौर पे भी नहीं होती है, लेकिन अगर लेट्स सपोज 10 years ओल्ड कोई कोड है, क्या आप उसको वही लेकर चलना चाहते हैं? कुछ जगहों पर इतना अच्छा लिखा होता है कि 10-20 years ओल्ड कोड भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस एक टर्म अक्सर यूज होती है कि टेक्निकल डेट। अब टेक्निकल डेट जो एक टर्म है वो बेसिकली सिर्फ उस वजह से आती है कि आपने पुराने जमाने में अपने जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उसमें आपने कोई एक ऐसी चीज बहुत तेजी से कर ली है कि आपको कंप्लीट रिव्यू करने का और उसकी लाइक एंड टू एंड क्वालिटी, कोड क्वालिटी चेक करने का आपको टाइम नहीं मिल सका। चीज सही काम कर रही थी, बट अब वो उस लाइक उसका जो शेप है वो इस तरह का नहीं है कि आप उसके अंदर मजीद कोई एनहांसमेंट कर सकें। ठीक है, आपको एक अलग चीज बनानी पड़ जाती है। ठीक है, या अगर उसकी एनहांसमेंट की आप बात करते हैं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इस किस्म की चीजों को, ये तो मैंने बहुत ही मामूली बात कही है, इससे ज्यादा भी और चीजें होती है जिसको हम टेक्निकल डेप्थ कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक ऐसी चीज बनाई कि जिससे अब आप फर्दर उस एरिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से वो चैलेंजेस को पूरा करना चाहेंगे। ठीक है, तो यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी एक लर्निंग एक एवेन्यू है कि जिसके अंदर आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, किसी भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को आप ये बता सकते हैं कि अच्छा भाई, इन चीज़ों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा प्लान है? अगर प्लान नहीं है तो आप सबसे पहले उस चीज के ऊपर काम करें कि हाउ टू प्लान इट। ठीक है, क्योंकि ये है चीज तो लॉन्ग टर्म। आप कोई भी टास्क किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे के ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा उसके लिए एक पाइल ऑफ वर्क होगा। ठीक है, होता है बट हमेशा नहीं होगा। तो फिर आप उसको इस प्लानिंग के अंदर कराएं कि किस तरीके से इन चीजों को सही करें। So yeah, this is how you get someone into constant learning. ओके, लेकिन मैं अगर इसी को क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो व्हेन इट्स
टाइम कि जहाँ उनको अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए खुद को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है फ्रॉम द वर्किंग राइट दे आर डूइंग। तो वहीं शायद वर्क प्रेशर इतना होता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम में वो रियलाइजेशन नहीं होता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो नीड्स टू ग्रो, राइट? दे कैन नॉट स्टक। समटाइम्स ये उनका मोटिवेशन भी होता है एक्चुअली टू स्टे बैक समवेयर डिस्पाइट ऑफ मेनी कंडीशंस बिकॉज दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देमसेल्व्स एक्चुअली इन कंडीशंस में जहां जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं। व्हाट यू एडवाइस कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फिर डेवलपमेंट मैनेजर्स या इंजीनियरिंग मैनेजर्स या सीडीओस कैसे इंश्योर करें? देखिए, कभी कभार ये काफी चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि देखिए हमेशा हर इंडिविजुअल आपको उस तरह का नहीं मिलता है कि जो कि क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर काम कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ टाइम एक्चुअली, आप कुछ ना कुछ लाइक द वन ऑफ द बेस्ट या बेटर टीम को आप उसके साथ किसी और टीम के साथ काम करने के लिए उनके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन करवा लेते हैं। बट सी, द पॉइंट हियर इज डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस, देखिए ये जिस चीज की आप प्रेशर की बात कर रही हैं, ये जो प्रेशर जो है वो हमेशा कहाँ से आ रहा होता है? या तो किसी यू नो कस्टमर्स के थ्रू होता हुआ, या मार्केट कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि जहां आपको फौरी तौर पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या किसी भी एक मॉड्यूल को लॉन्च करना है, तो यहाँ ही से प्रेशर आ रहा होता है। ठीक है ना? तो पॉइंट सारा ये है कि अ, जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने अभी अचानक किसी भी टीम को किसी क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ एसोसिएट कर लिया है, या आपने क्रॉस फंक्शनल टीम्स मिला बना दी हैं अपने पास, तो देखिए यहाँ, और अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं तो सिंपली ये कहूंगा कि यहाँ लैक ऑफ प्लानिंग है। ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से देखा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे अपनी कॉस्ट पूरी करनी है या मुझे अपनी लाइक कोई रिस्क को मैनेज करना है, तो आपका फोकस वहीं सिर्फ आ जाए। आप कहते हैं टाइम इज हैज देयर इज नो सच लिमिट ऑफ टाइम। टाइम आपके पास मतलब कि जितना कम से कम हो सकता है वो है, मतलब वो रियलिस्टिक टाइम फ्रेम नहीं है। इसी तरह स्कोप को कोई नहीं देख रहा होता है कि फिर ह्यूमन रिसोर्स का एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट्स आपको पता ही है किस तरीके सारे के सारे एक साथ ही होने आते हैं। तो अगर कोई ये सिंपली ये कहे कि नहीं ठीक है, मार्केट से प्रेशर है, कस्टमर से प्रेशर है एंड वी नीड टू लॉन्च इट, तो देखें कितनी बैड प्लानिंग होगी इस जगह पे कि आपने सिर्फ अपनी एक प्रोडक्ट के आउटपुट को ज्यादा फोकस दे दिया है, या इस तरह समझे आपने स्कोप को ज्यादा फोकस दे दिया है। ठीक है, कि जिसके अंदर आपने ये कहा है कि ये सारी चीजें मुझे चाहिए इस टाइम तक, लेकिन आपने ये नहीं देखा। और कॉस्ट को चलो ठीक है, आप कहते हैं कॉस्ट की कोई परवाह नहीं है, मुझे कॉस्ट अनलिमिटेड है, मैं जितना पैसा डालना चाहता हूँ। अक्सर वो होता है किसी के पास, जब आप ये कहते हैं ना कि एक खास किस्म का स्कोप आपको चाहिए, उस वो आउटपुट चाहिए आपको, तो आप कहते हैं कॉस्ट की कोई बात नहीं है। आप रिस्क को थोड़ा सा सही है देख लेते हैं, आप क्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर लेते हैं, वहां कुछ भी नहीं देख रहे होते हैं। आप ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट को नहीं देख रहे होते हैं, आप शेड्यूल टाइम को नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ही बैड प्लानिंग की है। तो इसका मतलब है कि जो हमने इतना कुछ हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि इन एरियाज में आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं उसकी। आपके पास नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपने प्रैक्टिस की होती है, आप डेफिनेटली इसको डिफेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इन चीजों को आप किस तरीके से लेके चले। तो इट्स अ बैड प्लानिंग, आई वुड से, कि अगर क्रॉस फंक्शनल टीम काम कर जाती है, विच इज वेरी गुड, प्रोबेबली इट हैज बीन बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ गुड प्लानिंग। लेकिन अगर ये नहीं चलती हैं, तो उसका मतलब है कि आई वुड सिंपली से कि इट्स अ वेरी बैड प्लानिंग। ठीक है, आपने ट्रेनिंग के ग्राउंड्स नहीं रखे हैं, आपने उतना टाइम इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स आपकी प्लानिंग का पार्ट थे,
जो कि आपने सिंपली इग्नोर कर लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा भाई ये चीज चल गई। इट्स अ गैम्बल। अगर चीज चल गई तो ठीक है, अगर नहीं चली तो ठीक है। आपने कहा कि सही है, इट्स अ बैड प्लानिंग, बैड लॉस। ठीक है। वेरी वेल सेड। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप और जाऊं, जो आपने बात की कि प्रेशर होता है, टाइट डेडलाइंस होती हैं, थोड़ा सा इसी को लेकर चलते हैं कि डेफिनेटली इन योर करियर स्पैन आपने देखा होगा, बीइंग अ डेवलपमेंट मैनेजर आप रहे हैं, हेड ऑफ डेवलपमेंट रहे हैं, राइट? हेड ऑफ इंजीनियरिंग आपने जो है अपना एक्सपीरियंस है आपका। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि डेडलाइंस बहुत ज्यादा टाइट होती हैं, राइट? जब हम डेवलपर से बात करते हैं, डेडलाइंस बहुत टाइट है, राइट? वी हैव टू परफॉर्म अंडर टाइट डेडलाइंस। ये एक बहुत नॉर्मल सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस है, जो कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सुनते ही हैं, राइट? तो being in such pressure of tight deadlines, I would say, quality of work, right? आप कैसे आई वुड से प्रोड्यूस करते हैं अपने डेवलपर से कि वो विद इन टाइट डेडलाइंस होते हुए भी एक क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो प्रोड्यूस करें? बिकॉज के हम एनकाउंटर करते हैं कि ठीक है, टाइट डेडलाइंस हैं, जल्दी डिलीवर हो गया, बट डेफिनेटली इट हैज लॉट्स ऑफ बग्स. So ultimately, it come back from the customer, and then again a rework is being required to it. तो एक क्वालिटी ऑफ वर्क को टाइट डेडलाइन में आप कैसे मैनेज करते हैं, या मैनेज किया है? हाँ देखिए, इस किस्म की चीजें तो यार इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो द ओनली अनकॉमन थिंग हियर इज प्लानिंग। ठीक है। इफ यू हैवंट प्लान्ड इट वेल तो कभी भी आपकी टाइट डेडलाइंस नहीं होंगी, आपको भी पता है। ठीक है। टाइट डेडलाइंस का मतलब है कि बैड प्लानिंग, सिंपल इज दैट। मतलब मैं इसके अंदर नो इफ्स एंड नो बट्स। ठीक है। बैड प्लानिंग लीड्स टू टाइट डेडलाइंस। ठीक है। और वो हर जगह ही है, हर किस्म के प्रोजेक्ट्स में ये चीज चली रही होती है। अच्छा, अब अगर आपने ये पहले से ही सोच लिया है कि ये वो वाली चीज है कि मतलब मुझे एक छोटा सा एक जोक समझ आ जाता है कि अगर आप चलते हुए जा रहे हैं और केले का छिलका देख लिया आपने, तो क्या आप ये कहेंगे कि मुझे आज फिसलना पड़ेगा इस पर से? आप वाकई गुजरना चाहेंगे इस पर से? ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप इस चीज को? इसका मतलब है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि डेडलाइंस आपकी, इवेंचुअली आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब आप किस तरीके से लेके चलना चाहेंगे? देखिए उसके लिए अब इसके खैर कई तरीके हैं और लोगों को पता भी है कि कैसे हो सकता है। लेकिन जब तक टास्क आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, आप हमेशा टाइट डेडलाइंस पे करेंगे। देखिए जो आपकी टीम की जो एक मेंटालिटी है उसको आपने adjust करना है सबसे पहले। कि वो, क्योंकि देखिए काम करने वाले तो, अब अगर एक चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हर चीज है ना टेम्पलेट बेस्ड अगर चले, टेम्पलेट बेस्ड का मतलब है कि थिंग्स आर प्री डिफाइंड, यू जस्ट नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल टेम्पलेट्स। ठीक है। तो ये वो वाली चीजें हैं कि अगर आपको कोई एक फर्नीचर है, लेट्स सपोज आपने कोई चीज खरीद ली कहीं से और वो उसे सिंपली असेंबल करना है, और आपने एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट आपने देख ली और सिंपली असेंबल करना है, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये चीज कितनी देर में हो जाएगी। ठीक है ना। ये 15 मिनट का काम है, या 5 मिनट का काम है, या आधे घंटे का काम है, या 5 घंटे का काम है। ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने टेम्पलेट बेस्ड अगर अपना काम किया है, ठीक है, तो उसके अंदर सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू आर थ्रू विद इट। सही है। ज्यादातर लोग इस तरह हैं। आपने जहां सोचने का काम रखा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इफ यू थिंक while you execute, this means you don't have the strict deadlines or strict timelines to complete that task. अगर आपको पता है कि ये स्क्रू इतनी देर में ही टाइट होगा, इसे 5 सेकंड लगेंगे टाइट होने में, या इसे ये स्क्रू बहुत ही लाइक टाइट है और इसे तकरीबन 1 मिनट लग जाएगा इसको पूरी तरीके से इंसर्ट होने में, तो वो आपको पता चल गया कि कितना है। लेकिन अगर आप उस वक्त ये सोचेंगे कि अच्छा इसमें कौन सा स्क्रू लगेगा, और मुझे किस कैलिबर का ड्राइवर मिल रहा है कि जिसके थ्रू मैं इसको, ठीक है ना, कंप्लीटली उसको फिक्स कर लूं, तो
वहां तो आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो पहले सोचेगा, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ यू आर थिंकिंग व्हाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग, दिस मीन्स यू नीड मोर टाइम। और फिर वहां जो टाइमिंग होती है वो फिर आप अपने अंदाजे के, लाइक पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी आपका तरीका ये भी होता है कि बहुत सारे टास्क हैं, जो काम जल्दी हो जाता है वो पहले कर लें, जिस काम को ज्यादा टाइम लगेगा उसको बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो कम से कम एक एक मेंटालिटी आपके पास आ जाती है कि अच्छा भाई, मैंने आउट ऑफ 10 टास्क, 8 टास्क मैंने कर लिए, सिर्फ दो दो बच गए। पता चला कि वो जो 8 टास्क थे वो तो समझे कि 20% ऑफ द टाइम में हो गए। ठीक है। कहने को तो ये वही 80-20 के जो अक्सर रूल होता है कि आपके 8 टास्क जो हैं आउट ऑफ 10, यानी कि 80% टास्क को आपको 20% टाइम में हो गया। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको टोटल टाइम मिला था 10 मंथ्स का, 10 टास्क, बहुत इजी कैलकुलेशन। ठीक है। तो आपके एट 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 ऑफ द टास्क आर कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स, एंड 2 ऑफ द टास्क आर रिमेनिंग, जो कि 8 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो इस किस्म से अगर आपने टास्क को ऑर्गेनाइज किया है, देन यू कैन probably अचीव फ्यू ऑफ द थिंग्स वेरी अर्ली। और फिर जो बाद की चीजें हैं वो सोचने का काम है। खैर, इसके अंदर फिर एक और भी चीज आ जाती है कि जिसमें डिपेंडेंसीज है, कि डिपेंडेंसीज की बेसिस पे आपने वो पहले काम करने हैं कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर एक्टिविटी। लेकिन पॉइंट सारा ये है कि एक ये भी तरीका है। और लाइक आई सेड बिफोर, अगर आपने टेम्पलेट्स को फॉलो किया है कि जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टास्क हैं जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो फिर तो इट्स इजियर टू वर्क। फिर उसके अंदर डेडलाइंस आपको बेसिकली टाइम पता चल जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी कंप्लीट टाइमलाइंस डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो डेडलाइंस है वो बिल्कुल ही उसी वक्त होती हैं जिस वक्त आपने प्लान किया था। लेकिन अगर आपने सोच ज्यादा लिया है, या आपके ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, या ऐसी रिसोर्सेज आपने इंक्लूड कर ली हैं कि जिनको कुछ नहीं आता था, और आपने कहा कि भाई ज्यादा बंदे लगाओ ताकि देखिए, ज्यादा बंदे, आप ये कहते हैं ना कि ज्यादा डेवलपर्स चाहिए तो जल्दी काम हो जाएगा। इफ यू इफ यू नीड हैंड्स, ओनली हैंड्स, जिनका काम एक लेबोरियस वर्क करना है, विच इज वेरी रेयर, ऐसा हर कोई नहीं करता है। ठीक है। तो आपने एक लेबोरियस टीडियस वर्क करना है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि हर जगह जाके आपके पास कोई लेट्स सपोज 500 डिफरेंट फाइल्स हैं, और उसमें जाके ये 4 वेरिएबल्स के नाम चेंज करने हैं। नो ब्रेनर। ठीक है। आप ले आए, आप जितने रिसोर्सेज लाएंगे उतने जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सोचना नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू थिंक while यू आर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, तो उसी उसमें ही आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। वहां फिर आपकी जो है ना कैलकुलेशंस आउट हो जाती हैं कि अच्छा, मैंने इस बारे में, लाइक टाइमलाइंस के बारे में इतना नहीं सोचा कि यहाँ टास्क एग्जीक्यूशन के लिए आपकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसीज होंगी कि मुझे अच्छा खासा सोचना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं किसी टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है। तो वहां फिर आपकी डेडलाइंस मिस हो जाती है, या आपने खामखा में स्लैकिंग की है, आपके पास काम था और आपने नहीं किया, और या डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपने वो डिपेंडेंसी के जो लिंक्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई नहीं किए। ये अच्छा काम तो करना था, लेकिन इस काम को करने से पहले किसी और टीम ने दूसरा काम करना था। ठीक है। वो आपने आइडेंटिफाई नहीं किए। अब आपको एन वक्त पर पता चलता है कि अच्छा भाई, दिस टीम वाज वेटिंग फॉर द आउटपुट फ्रॉम द अदर टीम। तो फिर आपकी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, या डेडलाइंस बहुत टाइट हो जाती Okay, so as you have a lot of experience as head of engineering, as head of development, and then as CTO, आप अपने ओवरऑल इस एक्सपीरियंस के टाइम स्पेन में से कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सिनेरियो हुआ है व्हेन देयर वाज अ मेजर सेटबैक from your team? So, and in that situation, if you can share how you handle it, because that's very important. Setbacks सबकी टीम्स में आते हैं, right? मगर the I think the important thing is कि head of engineering या head of development या CTOs उसको handle कैसे करते हैं, right? So, है। जी। can you share any example from your experience and how you handle it?
And what are your lessons learned actually from it? हम्म देखिए, सबसे पहले इसमें एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर ऑल द सेटबैक्स, the one who is leading the team, the one who is leading this particular task, a project, a module, or whatever, he or she has to accept the entire responsibility, because सबसे पहले तो उसको ये काम दिया गया था और वो सही तरीके से नहीं हो सका। अब सेटबैक्स की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, ठीक है ना, वो जरूरी है। ये गलत हो जाता है कि टीम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। ऑफ कोर्स, ठीक है, इट वाज अ टीम वर्क, लेकिन यू वर लीडिंग, ठीक है ना, तो यू शुड हैव checked it. Trustworthy टीम है, दैट्स फाइन अगेन, बट यू नो, ट्रस्ट से ज्यादा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खैर, एंड डेफिनेशन ऑफ सेटबैक, क्या सेटबैक हुआ है? वाज द कॉस्ट ओवररन? Was the deadlines missed, you know, gravely? Uh, क्या जो आउटपुट था वो क्वालिटी आउटपुट नहीं था, या जो स्कोप आपका था वो कंप्लीट नहीं हुआ और इनकम्प्लीट आपने कोई चीज़ दे दिया? तो हाँ, मतलब एक्सपीरियंसेस अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बहुत ही पुराना है, लाइक मतलब इट्स नॉट अ रीसेंट पास्ट, यू नो, probably 20 years ago. तो इस तरह की कोई चीज थी कि बेसिकली इट वाज अ स्कोप प्रॉब्लम। द सेटबैक वाज कि हमें तीन डिफरेंट वेबसाइट्स को मर्ज करना था। और मर्ज इस तरह था कि जो तीन डिफरेंट वेबसाइट्स की जो यूजर्स थे और उनकी क्रेडेंशियल्स थे, उन सबको एक वेबसाइट पे मर्ज करना था, तमाम यूजर्स को, जिसके अंदर ये था कि अगर दो डिफरेंट वेबसाइट्स में, लेट्स सपोज, किसी दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने सेम यूजर आईडी बनाई है, ठीक है, तो जैसे एक ने भी यहाँ कैप्टन अमेरिका लिख दिया, वहां भी किसी ने अपना यूजर आईडी कैप्टन अमेरिका लिख दिया है, तो अब दो कैप्टन अमेरिका मर्ज साइट में कैसे हो सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स, सही है ना? तो बेसिकली इस तरह का कोई टास्क था, विच इज अ ह्यूज, उसके रूल्स लिखे गए थे एंड ऑल दैट स्टफ। अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो तीन को करना था, लेकिन जो हाईलाइट किए गए थे वो दो वेबसाइट्स थी, तीसरे को आई वुड से बैडली इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, हमने उस वक्त पता चला कि तीसरा भी था, जो कि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि वो जो तीसरी वेबसाइट थी वो ऑलरेडी वन ऑफ दी वेबसाइट्स के साथ मर्ज हो चुकी थी, जबकि वो नहीं हुई थी। तो मतलब तीन बिल्कुल अलग अलग थी, और हमें ये ऐसा लगा था कि ये दो जो हैं वो मर्ज्ड हैं, तो हमने जो तीसरी थी उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। तो बेसिकली इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कि uh, इतना सादा और अच्छा खासा टाइम लग गया था इस पे, तकरीबन हमारे 3 to 4 months, मेरे ख्याल में 4 months लग गए थे। और 4 months के बाद आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा, ये एक चीज आपने इंक्लूड ही नहीं की है। सो वी बॉट, यू नो, वन ऑफ द, यू नो, वी बॉट सम टाइम, और उसके बाद इवेंचुअली तो करके देना था, बट ऑन योर ओन कॉस्ट। ये एक था। दूसरा, मुझे बड़ा अच्छा एक और इंस्टेंस याद आ रहा है इस वक्त, कि हम एक, लाइक, ये उससे भी पिछली कंपनी में मैं जब यूनेसिस में था, तो उस जमाने की बात है कि जब हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और उसकी लाइक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल द एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें उसमें तकरीबन 7 से 8 महीने लग गए थे, या शायद इससे भी ज्यादा लग गए थे। एंड एट द टाइम कि अच्छा भाई ये इस दिन लॉन्च होना है, उससे पहले, लॉन्च से पहले यूजर ट्रेनिंग होनी थी। तो यूजर एक्सेप्टेंस भी हो गई थी, हमने जाके डेमोस दे दिए थे और सब कुछ सही था। जब यूजर ट्रेनिंग हुई तो उस वक्त पता चला
कि जो ट्रेनिंग के लिए लोग आए हुए थे वो ये बता रहे थे कि आपने जैसा सॉफ्टवेयर बनाया है इसका जो यूआई था सारा, हम तो उस तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। हम तो जैसे कि वो रजिस्टर पे काम करते थे, ठीक है, और वो रजिस्टर पे अपनी सारी एंट्रीज करते थे, हमने वो रजिस्टर को कंप्यूटराइज कर दिया था। सिंपल एज दैट। 90s की बात है, मिड टू लेट 90s। तो हमने उन रजिस्टर्स को एज इट इज कंप्यूटराइज कर दिया कि जिस तरह रजिस्टर में कोई चीज नजर आ रही है हम उसी तरीके से आपकी डेटा एंट्री करवा लेंगे, जबकि उस तरह नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि ये सब कुछ इस तरह नहीं चलता है, इसके चलने के तरीके कुछ और हैं। हम टोटल हर हर लाइन का टोटल नहीं करते हैं, हम सारी लाइंस को सम अप करते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल टोटल्स, लाइक सॉरी, इंडिविजुअल टोटल नहीं करते हैं, फाइनल टोटल कर रहे होते हैं हमेशा। हमने इंडिविजुअल टोटल्स बनवा दिए थे उसके अंदर, बहुत सारी चीजें इस तरह की सेटबैक थी। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें ये पता चला, और उस वक्त तो ये बिल्कुल ही फैसला हो गया था कि ये जो आपने जो कुछ भी बनाया है, इम्प्लीमेंट किया है, ये यहाँ चल ही नहीं सकता। और जो यूजर्स थे वो बिल्कुल ही नॉन कंप्यूटर कंप्यूटर इलिटरेट थे वो लोग। तो उन्हें पहले कंप्यूटर की ट्रेनिंग और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना था उसकी ट्रेनिंग सब कुछ दी थी। तो उसमें हमें मजीद 2 महीने और लग गए कि उसका पूरा यूआई चेंज करने में। So yeah, I mean, these kind of things happen, and the only thing is either दूसरे प्रोजेक्ट्स में तो ये हो जाता है कि वो तो प्रोजेक्ट ही कभी कभार कैंसिल हो जाता है कि ये तो आपसे हो ही नहीं सका। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ऑन योर ओन कॉस्ट जस्ट कंप्लीट इट एंड देन डिलीवर इट टू अस। तो यहाँ मेरी ये 2 एग्जांपल्स थी जिसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि हमें डिलीवर करने के लिए टाइम मिल गया था, बट ऑन आवर ओन कॉस्ट। बट या these things can be missed during the projects. जी। Okay, so Yusuf, what are your lessons learned from both of these incidents? राइट, हाँ, लेसन लर्न की अगर बात होती है तो आई वुड से बैड प्लानिंग, absolutely no review of the work, and not in one of the projects, not engaging customer, all of the stakeholders um, during the project. जो दूसरा इंसिडेंट मैंने बताया था उसके अंदर तो सिंपल सी ये बात थी कि जो जो स्टेक होल्डर्स हमारे सामने थे वो एक्चुअल यूजर्स नहीं थे। तो जिन लोगों ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी वो एक्चुअल यूजर्स नहीं थे, एक्चुअल यूजर्स कोई और थे, तो हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। दैट्स अ बिगेस्ट लेसन लर्न। तो मैं उसके बाद से तो हमेशा ये देखता हूँ कि जो जब कोई इवेंचुअली अगर कोई चीज़ आपने डेवलप करनी है और कोई चीज़ सामने लानी है तो वो किसी यूजर को कैसे नजर आएगी, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल अलग बात है कि अगर कोई हमसे कहे कि हाँ इस तरह बना दो, ये कर लो, ये डिज़ाइन होना चाहिए, बट मैं इवेंचुअली देखना चाहूंगा कि भाई इंडिविजुअल जो फाइनल जो यूजर है जिसने की पंच करना है, जिसने माउस क्लिक्स करने हैं, वो क्या चाहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। और दूसरा जो इन दोनों के अंदर भी यही था कि हम क्या करते हैं कि अपना जो टाइमलाइंस बनाते हैं उसके अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बिल्ड पार्ट होता है, तो बिल्ड में बेसिकली यू ओनली क्रिएट फ्यू थिंग्स एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो टाइम और वेरी लेसर टाइम फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्क। किसी ने काम किया आप उसे एक दफा चेक कर लें, लेकिन टेस्टिंग अलग है। सो आई वुड से टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ऑल दीज काइंड ऑफ टेस्टिंग, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। वो तो फिर कुछ तो टेक्निकल लेवल पे टेस्टिंग होती है और कुछ तो ये होता है कि आपने जो फंक्शनैलिटी है उससे किस तरीके से मैच किया। बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रिव्यू ऑफ योर वर्क। आपने काम कैसे किया है, आपने टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की है, आपने डेवलपमेंट, आपने एक कोड कैसे लिखा है, आपने एक क्लास कैसे बनाई है, आपने एक स्क्रीन कैसे डेवलप की है। तो उसका जो कोड रिव्यू है या उसका जो भी एक
बिल्कुल ही बेसिक रिव्यू, ये मिस हो गया था हमेशा। ठीक है ना, तो ये अगर मिस हो जाता है तो उसका मतलब है यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग कि क्योंकि वो देखिए काम तो करके आपने अगर बढ़ा लिया है, लेकिन किसी ने दोबारा चेक किया कि अच्छा कैसे काम किया था आपने। तो ये चीजें जब मिस हो जाती हैं तो फिर यू नो यू कैन इनवाइट एनी काइंड ऑफ सेटबैक्स। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एंड दैट इज टेक्निकल डेट। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ जब इंजीनियरिंग टीम्स काम कर रही होती हैं, तो आई थिंक इंजीनियरिंग टीम सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल करती है वो अपना टेक्निकल डेट प्रायोरिटाइज करने में करती है। Because during I would say with working in a cross functional team, always focus on the client deliverables, right, or what needs to be done in the next release. तो टेक्निकल डेट कहीं ना कहीं शायद लोगों की अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं बन पाते और इंजीनियरिंग टीम्स को शायद अंडरस्टैंड नहीं करवा पाती सही तरह से। सो what do you think should be the role of the head of engineering or the head of development or the CTO when these technical debts are there कि they are important and they also need to get prioritized? तो आपको क्या लगता है इन्हें क्या रोल प्ले करना चाहिए इसके लिए? um, देखिए टेक्निकल डेट जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि इट्स बेसिकली द वर्क दैट यू हैव डन इन पास्ट which cannot be further, uh, um, you cannot work further on those kind of modules. तो उसकी वजह ये है कि either they were badly coded, और अब उसकी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। बेसिकली डिपेंडेंसी इज द मेन फैक्टर ऑफ टेक्निकल डेट, कि आपका एक ऐसा कोड जो कि हाईली डिपेंडेंट है, कोर मॉड्यूल्स का पार्ट है। इसके अलावा अ, उस कोड में अब कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट बहुत आसानी से नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट enhance any of the part of it। तो उसको फिर, और इट्स अ पार्ट ऑफ योर होल प्रोडक्ट, तो इसलिए आप उसे टेक्निकल डेट कह देते हैं। ठीक है। आ, ये क्यों बनता है? जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा कोई बुरा ही काम किया हो तो उस बेसिस पे बन जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी दफा चेंज हो गए हैं। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि यू डिडंट रियलाइज कि पहले आप किस तरह काम कर रहे थे और अब कैसे कर रहे हैं काम। ठीक है, तो इस हिसाब से भी टेक्निकल डेट बढ़ जाता है। इसके अलावा ये भी हो जाता है कि काम तो बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन अब वो इंजीनियरिंग टीम अब आपके साथ नहीं है जिन्होंने वो मॉड्यूल्स बनाए थे, और उन्होंने अपना एक तरीके से कोई चीज काम किया था जो कि अब जो लोग आए हैं उनको नहीं समझ आ रहा है कि उसको किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करें। तो इन तमाम चीजों को आप जब मिला देते हैं तो वो एक टेक्निकल डेट ही सामने आता है। तो दिस मीन्स द कोड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। The code needs to be improved to such an extent that you can extend it, you can add further modules, you can put some improvements। अच्छा, अब इसकी भी जरूरत क्यों पड़ गई है? Why? Because now that particular code is not a high performing code। ठीक है, स्केल अप नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, आपने अगर लोड ज्यादा बढ़ गया है तो वो उसका जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेक्निकल डेट्स के अंदर आ जाती हैं। देखिए, अक्सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोग देख ही रहे होते हैं कि जो टेक्निकल डेट है वो इंक्रीज होता जाए। एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग, डोंट टच इट। ठीक है ना, ये एक नॉर्मली अक्सर लोगों का एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन अगर इफ समवन रियली वांट, अच्छा, और उसका दूसरा तरीका ये होता है कि जस्ट स्क्रैप द होल थिंग एंड बिल्ड अ न्यू थिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और इसके लिए तो पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए अच्छा खासा, और जिसके पास है वो तो कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कई दफा किया। सीक्वल सर्वर डेटाबेस इतना ह्यूज, ठीक है ना, उसकी जो कुछ वर्जन ऐसे भी थे कि उन्होंने पिछला वर्जन बिल्कुल ही स्क्रैप कर लिया और फ्रॉम द स्क्रैच उन्होंने एक नई प्रोडक्ट बनाई थी। दे हैव मनी, दे हैव टाइम, दे हैव टीम्स, सो दे कैन डू दैट। नॉट एवरीवन कैन डू दिस। तो इस केस में
एक तरीका तो ये है कि जो कि आमतौर पे लोग फॉलो करते हैं कि जस्ट लीव इट एज इज। लेकिन अगर उसे वाकई आपने इम्प्रूव करना है तो इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, हाईली स्किल्ड डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, जो कि उन सारी चीज़ों को इस लेवल की उसकी एनालिसिस हो जाए, मीनिंग उस लेवल तक उसको आपने स्टडी कर लिया है कि नाउ यू हैव द राइट वे टू वर्क ऑन इट। देखें, कभी भी कुछ पुराने कोड को आप कभी भी नहीं हाथ लगाना चाहेंगे जब जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसका आउटपुट क्या है। इसके अंदर आपको फिर उस लेवल के कंप्यूटर साइंटिस्ट भी चाहिए होंगे कि जो कि इस तरह अपने कोड को टेस्ट करें कि without executing something, how do you ensure that the existing module, which is part of the technical debt, and the new module that you are trying to create, इन दोनों का आउटपुट जो है वो सेम ही मिले आपको, मैथमेटिकली सेम मिले आपको, लेकिन लॉजिकली सेम मिले आपको। तो ये इस लेवल की आपने एक्सरसाइज करनी जरूरी है, और इसके लिए प्लानिंग अच्छी खासी करनी है। तो प्लानिंग, एनालिसिस, right type of people who have the ability to refactor things without affecting other part of the code. So yeah, these are some of the ingredients for ensuring कि technical debts आपके पास जितने भी हैं वो pay off हो जाए। ओके सो आई थिंक हम जब कई इस पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कस अबाउट इट, you have you went through a huge journey to reach to a space of a the title or the designation of to the role of a chief technical officer or CTO, right? But this is an entire journey which you went through, right? Starting from a teacher assistant at Fast University, right, to the developer and to the head of development, then head of engineering, and then to the CTO. It's an entire journey you went through, right? And you learned it hard way, right? When there was no guidance available that how to reach to this path or what should be done, right? So experiences से चीजों को जो है वो ज्यादा सिखाया है. So, but आज we are lucky that we have those senior people like you in the market, in the organizations, from जिनके experiences से जो है वो अब future generation सीख सकती है, right? There are many people who are in the making of head of engineering. There are many people who are in the making of CTO, right? So what piece of advice you give to them so they won't struggle in their journey? देखिए, इस पूरी जर्नी में या आई लर्न इट अ वेरी हार्ड वे, नो डाउट अबाउट इट। बहुत कम लोग थे सिखाने वाले, लेकिन थे कुछ ना कुछ। मैं कुछ लोगों को जरूर कहूंगा कि भाई मेरी इस जर्नी में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे काफी मेंटोरिंग की थी, लेकिन ऑब्वियसली वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। और जिस जमाने में मैं स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त इस तरह की हाई एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स नहीं थे कि आप कहीं भी किसी से भी बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ कि वेस्ट से हट के अगर आप आ जाएं, स्पेशली इन पाकिस्तान, इस तरह की बहुत कम एवेन्यूज थे कि जहां आप जाके अपने आप को लाइक एक ग्रुप टॉक कर सके। थे थोड़े बहुत थे, लेकिन इस तरह लार्ज स्केल पे कुछ नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है कि अभी भी अक्सर लोग जो थोड़ा सा इस चीज में लैक करते हैं कि उन्हें कोई अगर मेंटोरिंग, there are two things, either you go to the mentor or the mentor comes to you। ठीक है, तो the latter part is the easier कि भाई कोई आए और सिखाए, ना कि हम जाएं। ठीक है ना, तो वो हम जाएं या ना जाएं, वो उसका तो हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है कि मैं इतनी स्ट्रगल करूं क्योंकि मेरे पास तो काम बहुत ज्यादा है। कोई आए मुझे सिखाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्या वाकई जो जो सिखा रहा है, यानी कि मैं अब, ठीक है, अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं सिखाने के लिए। क्या मैं कोई एक ऐसी आ, आ, वीडियो, कोई ऐसी पॉडकास्ट देखना चाहूंगा कि मुझे एंड तक अगर मैं देख लूं और उसके बाद मुझे पता चले कि नो दिस इज नॉट वन ऑफ माय टाइप? तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं
टाइप के सर, क्योंकि देखिए वन वे ऑफ लर्निंग होती है, जैसे सेल्फ लर्निंग है, या अगर यूट्यूब बेस्ड या उस तरह की जो लर्निंग है वो वन वे लर्निंग है। आपको कोई ना कोई बता रहा है इस तरीके से, जैसे कि कोई बुक पढ़ के सुना रहा है या कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है। यू डोंट हैव द लिबर्टी टू आस्क समवन बैक कि अच्छा भाई, आपके जहन में तो बहुत कुछ चल रहा है कि अच्छा इसने तो ये बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपके पास तो कई सवाल आते हैं, उनके जवाब कौन देगा? ठीक है, तो वहाँ इंटरेक्शन जरूरी है। सो आई वुड से देखिए, इंटरेक्शन का होना जरूरी है कि इंटरैक्टिव लर्निंग इज अ मस्ट। ठीक है, वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा अगर नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप कभी ना कभी तो जरूर कर लें। सो दैट्स वन थिंग। The second thing is you have to trust your people। ठीक है, मेरे ऐसे कई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं मेरे अपने, कि मैंने कुछ लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया और उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया कभी भी। ठीक है ना, इट्स ऑलवेज लाइक एंडेड अप इन अ बैड नोट। तो यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, यू हैव टू अच्छा, अगर कोई आपके साथ नहीं चल पा रहा है, आप उसको फौरी तौर पे अलग कर दें और आप कह दें कि चलो ठीक है, दैट्स फाइन, वी वी हैव यू नो केम अलोंग दिस वे टू दिस फार, अप दिस फार। अब मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम दैट आई एम काइंड ऑफ मेकिंग अप। तो आप उन्हें एक्सक्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कभी कभार ये भी एक टफ चीज होती है कि आप किसी को कैसे एक्सक्यूज करें जो कि आपकी टीम का पार्ट अच्छे तरीके से नहीं बनना चाह रहा है। ठीक है, तो एक ये भी चीज होती है। तो राइट काइंड ऑफ अ टीम जिस पे आप अच्छा ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, प्लस आपकी जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है इस वक्त, उसके बारे में आप हर किस्म की मालूमात रखें, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स बोथ ऑफ देम, कि अगर कोई एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसके प्लसेस क्या हैं, उसके माइनसेस क्या हैं। सो दिस मीन्स यू नीड टू लिसन टू पीपल हु आर टॉकिंग, यू नीड टू चेक दोज पीपल के जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है या जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि अच्छे नहीं थे, उनसे आप थोड़ा सा और सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से, उनका फेलियर कैसा था। तो इसका मतलब है कि लोगों के जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको स्टडी करना, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, बुक रीडिंग थोड़ी सी है, लाइक मतलब कि कुछ कभी कभार कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, वो आपको स्टडी करना, वो रीड करना है। देखिए, रीडिंग का एक अपना एक पॉजिटिव चीज है। मतलब अक्सर अब तो ये बन गई ना, वीडियो बुक्स, सॉरी ऑडियो बुक्स बन गई हैं, कि जो आपकी बुक्स को सुना के आपको समझा दे। देखिए, वो भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन अगर बुक पढ़ना, फिर कुछ लोगों को ये होता है कि जैसे स्क्रीन पे आप बुक पढ़ें या अपने हाथ में लेके पढ़ें। ठीक है ना, तो वो भी हर एक का अपना मिजाज है, वहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप खुद रीड करना चाहते हैं, पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर हो या फिजिकल बुक है, तो वो भी एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप सोच रहे होते हैं, आप रीड कर रहे होते हैं, तो काफी चीजें आपको समझ आ रही होती हैं, एज सपोज टू कि कोई आपको सुना दे। ठीक है ना, क्योंकि वो तेजी से सुना देगा। क्योंकि यहाँ क्या होगा कि आपका ध्यान, देखिए जब आप कोई चीज सुन रहे होते हैं, तो अक्सर आप है ना डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई कोई पार्ट मिस हो जाता है, कोई वर्ड्स मिस हो जाते हैं जो कि आप सुन नहीं पाते हैं। तो आप बार बार, अगर आपने ऑडियो बुक सुनी है, तो आप फिर उसको रिवाइंड कर लेंगे। ठीक है, या अगर आपको कोई चीज स्किप करनी है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर, खैर फास्ट फॉरवर्ड इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आप ध्यान देना आपका, लाइक इट्स मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंस। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, तो इट्स इजियर टू रिपीट द सेंटेंस दैट यू हैव रेड ऑलरेडी, ताकि आपको वो चीज समझ आ जाए। लेकिन जो चीज आप सुन रहे होते हैं किसी की, यानी कि वीडियो देख रहे होते हैं या ऑडियो सुन रहे होते हैं, तो अगर आपका ध्यान जरा सा भी मिस हो जाए, तो आप कहते हैं कि पीछे चले जाओ थोड़ा। तो आपके पास रिवाइंड की कैपेबिलिटी है, लेकिन आप कितनी दफा करेंगे? ठीक है, तो बुक पढ़ लिया करें, अच्छी चीज है। लोगों को सुन लिया करें, ये भी अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको प्लसेस माइनसेस सारे पता होने चाहिए।
ताकि आप डायरेक्शंस ले सकें। देखिए सीटीओ, टीम लीड्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स जो भी हैं सारे, इनका जो वन मेजर टास्क है इज टू सेट द, आप में देखें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ, लाइक देर इज समवन हु शुड गाइड देम कि कैसे करना है, क्या करना है इवेंचुअली। तो कुछ लोग तो दूसरों की कहने के ऊपर, यानी कि अच्छा आजकल एआई के बारे में सारा कुछ है, उसके प्लसेस माइनसेस बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं दुनिया में, मुझे कहाँ लेके जाना है। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन सेट करने वाली जो बात है, इसमें एक तो ये कि आपने लोगों से सुन लिया और उनकी उस बेसिस पर आपने एक डिसीजन लिया और आपने डायरेक्शन सेट कर ली। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतने ज्यादा अच्छे हो जाएं, इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएं कि आप वो वाला रोल प्ले करें कि जिसकी बेसिस पे लोग ये कहें कि अच्छा आपने ये काम किया तो अब मैं भी इसी तरीके से अपनी डायरेक्शन सेट करूं। मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, यू आर द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आप उस लेवल तक पहुंच जाएं। खैर, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु लीड द एंटायर वर्ल्ड, कि जाना किस तरह है, या किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 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 बेसिकली हाँ यही है। so there are people, the technology plus minus, and you need to have a very good decision making power, कि जहाँ आप और एक चीज मैं हर एक को ये बताता हूँ कि एक जब आप डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके बाद जस्ट मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक, ब्रेक्स नहीं लगाएं। क्योंकि अगर आपके ब्रेक्स लग जाते हैं ना, तो फिर पेस स्लो हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं, लोग आपके साथ नहीं फिर देना चाहते। यू हैव टू मूव वेरी फास्ट। ये वो वाली चीज है कि आप एक है ना एक वीडियो गेम खेल रहे हैं कि जिसके अंदर ऑब्स्टिकल्स बहुत तेजी से आपके पास आ रहे हैं, एंड यू नीड टू डॉज देम। तो ये वाली जर्नी है। तो you have to very fast, you have to think very quick, but at the same time you must have uh, got enough knowledge कि आप अपने अच्छे decisions बना सकें। That's great. Thank you so much, Yusuf, for giving us your time. And I think जब ये podcast आएगी, people will going to learn. We all will going to learn more from your experiences. And I think Thank you so much. there will definitely going to be more questions. But आज आपने इतना टाइम दिया और आई थिंक हमने काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात की, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम काम करते हैं तो हमें जो है वो बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इनकाउंटर करते हैं और हमें सीनियर के एक्सपीरियंसेस से ही इनको सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे, and thank you everyone for joining us today. And in the future, if there are further more topics or people you want to hear, so just comment on this podcast and we will definitely going to get back to you with them. Thank you. Allah Hafiz.